میری تقریر سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھے اس لیے کہ اس کے بعد ایک ایکشن، اس کے بعد پھر جو ہے دھماکہ دار ڈرامہ پیش ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدر ذی وقار، حکام صاحبان، مسبق اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہن، آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں جس صحت پر لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہی ہوں وہ ہے سسرال، لیکن اس پر کچھ بولنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کر دوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں پروردگار فرماتے ہیں کہ اپنے میں جو غیر شادی شدہ ہو اور اپنے سدھارے ہوئے نیک غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کر دو، اگر وہ فقیر ہو تو اللہ انہیں اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا کشادہ اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اس آیت میں شادی کرنے کی تاکید ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی کرنا میری سنت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی اسلام میں صرف ایک بنیادی رسم نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ثواب کا کام ہے، اور شادی برکت کی چیز ہے جس سے اللہ ایک غریب شخص کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ میری معزز بہنوں، یہ تو آپ جانتی ہو کہ شادی کے بعد ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ اور بھائی اور بہنوں کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ جانا پڑتا ہے جسے ہم سسرال کا نام دیتی ہیں۔ سسرال وہ جگہ ہوتی ہے جس میں ایک بیٹی کو اپنے رفیق حیات کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، وہاں اسے ساس سسر اور نند وغیرہ ماں باپ اور بہنوں کی جگہ ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک بہتر اور اچھا ہو تو پھر اسے عزت اور آرام دونوں ملتا ہے۔ اس لیے ایک نئی دلہن کے لیے ایک بڑا نازک دور ہوتا ہے، اور اگر اس سے ذرا بھی چوک ہو جائے تو اس کی وجہ سے اسے بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر سسرال میں جا کر چند باتوں کو دھیان میں رکھا جائے تو انشاءاللہ کوئی بڑی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ جب سسرال جاؤ تو خود کو مہمان نہ سمجھو کہ گھونگھٹ میں رہو اور تمہیں یہ خبر نہ ہو کہ کون آیا اور کون گیا، بلکہ دلہن رہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کام میں شریک رہو۔ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ اور نندوں کو اپنی بہنوں کی جگہ سمجھو۔ اگر تمہارے ہاں سے کوئی چیز آئے تو تم اپنی ساس اور نندوں کے پاس بھیج دو، اور پھر وہ جو کرے تم خوش رہو۔ جو ساز و سامان اپنے والدین کے پاس سے لائی ہو سب انہی کے ماتھا ہاتھ رکھو۔ کچھ بہو ساس اور نندوں کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتی ہے کہ نگاہوں سے گر جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سب اس سے دور جاتے ہیں، اور کسی مشکل میں پڑ جائے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی ضروریت کچھ ایسی ہے کہ اسے برابر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو کچھ میسر ہو کھا لو، اپنی ساس نندوں اور شوہر کے سامنے کبھی اپنی یا اپنوں کی
न करो जिससे जाहिर हो कि ससुराल में एक खूबियां नहीं बल्कि यहाँ के लोग उनसे कमतर है। ये तो जरूरी बात है कि आप अगर ये चाहे कि मैं अपनी ससुराल को अपनी पसंद का बना लूं तो मुमकिन नहीं, बल्कि आपको ससुराल के अच्छे असरात लेने होंगे। आपको ये चाहिए कि अगर ससुराल में एक खूबियां नहीं बल्कि आपको ये चाहिए कि ससुराल के अच्छे असरात लेने होंगे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खामियां दिखाई दे तो ऐसे अंदाज से बात करो कि कोई ये ना समझे कि तुम ये बातें रिसवाई और बेइज्जती करने के लिए कर रही हो, बल्कि उसमें तुम्हारी खैर खाई और हमदर्दी की झलक होनी चाहिए। उससे तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और तुम्हारी बातों को भी मान लिया जाएगा। काम से फुर्सत के वक्त तुम अपनी सास और नंदों के पास बैठो, सास का अदब करो, जो बात कहे उसका जवाब अदब से दो और ससुराल के माहौल तरीके को समझने की कोशिश करो। अगर कोई बात तुम्हें पसंद न हो तो जरूरी नहीं कि उसी वक्त टोक दो और उसका जवाब देने की कोशिश करो, बल्कि कभी मौका से अपनी बात पेश करो। सास और नंदों के सिवा आपकी ससुराल के रिश्ते में कुछ और भी लड़कियां होगी, वह आए तो उनके साथ भी हमदर्दी से पेश आओ, उससे वह भी आपकी हमदर्दी बन जाएगी और वक्त जरूरत आपका हाथ बताती रहेगी। ये सब कुछ आपको सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि उसमें आपका दुनिया का फायदा है, बल्कि यही हमारे दीन इस्लाम की तालीम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक शख्स को उसके अच्छे सलूक और बर्ताव की वजह से दीन के रोजेदार और रात के नमाजी का सवाब मिल जाता है। बल्कि एक हदीस में तो यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पैगंबर बनाकर भेजा ही इसलिए गया हो कि अच्छे सलूक की तकमील करो। ससुराल के अंदर आपका सब कुछ आपका शौहर है, जिसकी वजह से आपको ससुराल में जगह और इज्जत मिली है, इसलिए उसकी इज्जत और दिलजोई करना आपका अव्वलीन फर्ज है और उसके सिलसिले में चंद बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर शौहर सामने आए तो उससे हंसकर मिलना और बात करना चाहिए, उसके सामने मुंह बचोर कर रहना निहायत बुरी बात है। आपको कोई तकलीफ हो या कोई शिकायत हो तो आप शौहर के सामने आते ही बयान ना करें, क्योंकि आप नहीं जानती है कि शौहर का तेवर आपसे उसके दिल तोड़ सकता है। अगर शौहर कुछ करने की फरमाइश करे तो उसमें जरा भी सुस्ती ना करो और हमेशा उसके आराम की फिक्र करो और उसकी इज्जत करो और कभी उसकी खुशी को अपनी खुशी से बढ़कर समझो और उसकी खुशी को अपनी खुशी से बढ़कर समझो। अगर मुफलिस हो तो उसे अपनी दौलत समझो और उसकी इज्जत करो और कभी उससे ऐसी चीजों की फरमाइश ना करो जो उसके बस में ना हो और ऐसे अंदाज से काम करो कि कम आमदनी की वजह से उसे तकलीफ ना हो, क्योंकि तुम्हारी फरमाइश से तुम्हारे शौहर के जहन पर एक नया बोझ पैदा होगा और उसकी फिक्र और उलझन बढ़ जाएगी, जिसका असर किसी न किसी सूरत में आप पर जरूर पड़ेगी। एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने मिलकर आपसे ये कहा कि आप जो कुछ हमें देते हैं उससे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती, इसलिए हमें अब कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खामोश बैठे थे। आपके पास इतना ना था कि उन्हें जो कुछ दे रहे थे उससे ज्यादा दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं आई और ये आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैन उम्मतिकुन्ना उशर्रहकुन्ना शराहन जमीला। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया का आराम और चमक दमक चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें साजो सामान देकर खूबसूरती से आजाद कर दूं। जब ये आयत उतारी तो आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि तुम अपना फैसला अपने वालिदैन से मशवरा लेने के बाद करना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके बारे में किसी से राय लेने जाऊंगी। हजरत आयशा का यह इशारा था कि मैं खुद ही आपको नहीं छोड़ सकती। इस हदीस को जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत किया है। मेरी प्यारी बहन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इससे जाहिर होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से और उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार था और फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कितनी अक्लमंद और होशियार थी कि उन्होंने दुनिया की दौलत और चंद रोज चमक दमक के लिए अपने प्यारे शौहर का साथ छोड़ना और आपसे जुदा होना
किया और गुर्बत व इसरत के बावजूद आपका साथ निभाया, क्योंकि आप जानती थी कि शौहर से बढ़कर कोई दौलत नहीं और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज़्ज़ज़ और बेहतर कौन सा शौहर हो सकता है। और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमारे लिए एक नामूना छोड़ दिया, जिसे किसी शायर ने क्या ही कहा है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है, मेरी जबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौरे इंतजार में आपस की दुश्मनी, इस दौरे इंतजार में आपस की दुश्मनी, सोचो जो गौर से तो कयामत की बात है, सोचो जो गौर से तो कयामत की बात है। मेरी प्यारी बहनों, जब बात यहाँ तक आई है तो आइए मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत की कुछ कैफियत भी सुना दूं, जिसके होते हुए आपकी पाकीज़ा बीवियों ने आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारी और आपके बाद भी उन्होंने आपकी कोई कभी शिकायत नहीं की। आपने ये रिवायत सुनी होगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपको मुसलसल 2 दिन पेट भर जौ की रोटी मैसर नहीं हुई और जब आप दुनिया से गए तो चंद कुलधार जो के बदले में अपनी जर्रा एक यहूदी के रहन रख दिया था, जिससे जो खरीदा था। और उम्मुल मुमिनीन हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई उमर बिन हारिस ने बयान किया कि आपने दुनिया से जाने के वक्त न सोना छोड़ा, न चांदी, न गुलाम और न लोंडी। आपका सफेद खच्चर और हथियार और कुछ जमीन थी जिसे आपने पहले ही सदका कर दिया था। मेरी प्यारी बहनों, आपने देखा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ आपकी बीवियों ने किस गुर्बत में वक्त गुजारा, लेकिन अब भी उनका नाम है और बड़े बड़े मालदारों की बीवियां इस करके इस दुनिया से गुजर गए और उनका कोई नाम लिया भी नहीं है। यह दीन की बरकत और यह गुर्बत का असर। दुनिया तो चंद रोज की है। हाथों में शौहर की दिलजोई की बात कर रही थी कि शौहर सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अगर शौहर को खुश रखेगी तो शौहर को खुश रखा तो खुद भी खुश रहोगी। इसलिए शौहर गरीब हो तो आपका ये काम है कि बेकार फरमाइश करके उस पर बोझ ना डाले और शौहर की आमदनी के लिहाज से अपनी जरूरत भी पूरी करे और उसकी इज्जत करे, क्योंकि आपके शौहर की इज्जत आपकी इज्जत है। और अगर तुम शौहर को खुश रखेगी तो अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा और उससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए क्या दौलत हो सकती है, इससे उसका रब खुश हो जाए। रही गुर्बत तो अल्लाह के हाथ में, जब चाहे खुशहाल बना सकता है अल्लाह का ये वादा भी है कि जैसा कि आयत के तर्जुमा में आपने अभी सुना है कि अगर शादीशुदा गरीब हो तो अल्लाह उसे अपने फजल से खुशहाल कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे वह खुश रहे। कौन रखेगी हमें याद इस दौर खुद गर्जी में, कौन रखेगी हमें याद इस दौर खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं। अपनी ईमान की कोई भी अदा याद नहीं, अपनी ईमान की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफी पे तराने ही बस है, अगर याद तो काफी पे तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं है, अगर याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने संग दिल है कि शर्म हया याद नहीं, कितने संग दिल है कि शर्म हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब नहीं है शायद, आज अपनी जिल्लत का सबब नहीं है शायद। सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। ये थी रुक़ैया खातून मुजीबुर रहमान। इनकी तकरीर सुनकर